ہمارے درمیان کچھ اور طے ہوا تھا. کیا طے پایا تھا رفاہ؟ تم نے قیام کے مقاصد کو سیاسی مصلحتوں کے نظر کر دیا ابو اسحاق. بظاہر حکومت کی مٹھاس نے آپ کو بہت مزہ دے دیا. جس گروہ کو قید کرنے کا حکم تم نے دیا ہے وہ سب کے سب ایسے لوگ ہیں کہ علی کی محبت کے جرم میں ان کے بدن میں ایک جگہ بھی سلامت نہیں رہی. ان لوگوں نے اس کتے اور کتے کے بچے کو مارا ہے جن کا اگرچہ کربلا میں کوئی دخل نہیں تھا، مگر انہوں نے مولا علی کے مریدوں پر کوئی کم ظلم بھی نہیں ڈھائے ہیں. کیا بات ہے ابو اسحاق؟ عدل و انصاف کا پرچار کرنے کے سلسلے میں اتنا پریشان ہے؟ اگر ہر کسی کو اپنی رائے کے مطابق تلوار چلانی ہے اور اپنے ہی فتوے پر عمل کرنا ہے تو اس طرح کی حکومت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. یہ کیسا فلسفہ ہے تم لوگوں کا؟ یہ تم لوگ ہو جو اپنے فلسفے کے ساتھ حسین کے داغداروں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو. آپ لوگوں نے قاتلان حسین کے قصاص کے وعدے پر قیام کیا، ان لوگوں سے انتقام لینے کا وعدہ کیا، تو پھر کیا ہوا؟ قاتلان حسین ہماری نظروں کے سامنے شراب پی رہے ہیں اور ہماری داڑھیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم انتقام لینا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہر چیز اپنے وقت پر ہوگی. ہم سیاست کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسی سیاست ہے جو ان لوگوں کے مقدس غصے کی آگ پر پانی ڈال کر اسے بجھا دینا چاہتی ہے؟ کیا آپ ڈرتے ہیں کہ آپ کی حکومت خطرے میں پڑ جائے؟ اگر آپ نے حکومت پانے کے لیے قیام کیا ہے جس کی وجہ سے لکڑی کے سہارے چلنا چاہتے ہیں تو ہمارا کوئی ایسا عذر نہیں ہے. بن شداد، میں نہیں چاہتا کہ شیعوں کے قیام کو بچکانا فیصلوں اور اس طرح کی جلد بازیوں سے ضائع کر دوں. شیعوں نے آپ جیسوں کے غیر سنجیدہ فتووں کی وجہ سے کچھ کم نقصان نہیں اٹھائے ہیں. کبھی اپنے دور کی ضرورتوں کو سمجھا ہی نہیں تم لوگوں نے. اگر میں یہ کہوں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کا خون تم جیسوں کے سر پر ہے تو غلط نہ ہوگا. کبھی بھی عدالت کے راستے پر نہیں چلے تم لوگ، نہ عین الوردہ میں، نہ کربلا میں، اور نہ ہی آج. ہمیشہ یا تو افراد کیا ہے یا تفرید. اگر اپنے آپ کو علی کا شیعہ جانتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں کہ علی کے اصحاب کی حکومت بعد از 30 سال شکست اور تکلیفوں کے بعد کوئی نتیجہ دے، جائیے اور اپنے آپ اور اپنے خدا کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیے اور جس کام کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس میں دخل اندازی مت کرو اور اپنے یہ 2 ٹکے کے فتوے مت دو. کیا آپ لوگ اس شخص کے عقائد سے موافق ہیں؟ تو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے گناہوں میں شریک نہیں ہوں گا. اگر مختار قیام سے پہلے ان عقائد کا اظہار کر دیتا تو میں اس کی بیعت کا گناہ اپنے سر نہ لیتا. خدایا معاف کرنا، مجھے معاف فرما. اب جب کہ میں اس کی دلی خواہش جان چکا ہوں، اب بھی اس کی بیعت نہ توڑوں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا. رک جاؤ رفاہ، تم تو آدھے راستے کے ساتھ ہی نہ تھے، کہاں چلے؟ میرے ساتھی قبر میں سو رہے ہیں، عین الوردہ کے بیابان میں. میں سلیمان کی قبر کی مٹی پر تیمم کرنے جا رہا ہوں تاکہ جو ہاتھ مختار کی بیعت میں نجس کیا ہے اسے پاک کر سکوں. استغفار کرو رفاہ، تمہارا اور مختار کا مزاج نہیں ملتا. ایک دوسرے کو ناپاکی کا الزام کیوں دیتے ہو؟ تم اس کے حامی ہو کیونکہ اس نے قیام کے مال غنیمت میں سے تمہیں زیادہ حصہ دیا ہے. اپنے آپ پر رحم نہیں کھاتے تو اپنے مرحوم باپ مالک کی عزت پر رحم کھاؤ. ہم نے امیر و وزیر اور سپہ سالار بننے کے لیے قیام نہیں کیا تھا. جب تک قاتلان حسین کا قصاص نہ ہو جائے یہ قیام میری نظر میں کامیاب نہیں ہوا ہے. لگام چھوڑ دو. السلام علیکم.
खुदा कबूल करे। खुदा कबूल करे। जनाब रफा, मुझे मानना ही पड़ेगा कि आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी व खुशू वाली नमाज पढ़ी है। इस अच्छाई के लिए खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। आज रात हमारा जमा होना काफिरों के कत्ल के लिए है। काश तुम्हारे साबका दोस्त कुछ बसीरत रखते और मुसलमानों के दरमियान तफरुक़ेबाजी ना करते। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता है इब्न ज़िल जोशन। जिस दिन से मैंने ये सुना है कि तुम शैतान ने दश्त करबला में फर्जंद रसूल के साथ क्या किया है, उस दिन से मेरी तुम लोगों का खून बहाने के अलावा और कोई तमन्ना न थी। खुदा मुआफ न करे मुख्तार को कि उसने खून हुसैन का इंतकाम चाहने वालों के साथ नाइंसाफी की और मुझ जैसे को तुम जैसों की सफ में खड़ा कर दिया। खूब, ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी तमन्नाएं दिल की हसरत बनकर ही रह गईं। जनाब रुफा, आप दुश्मनों के लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? इंसान खता का पुतला है, शैतान के फरेब में आकर गड्ढे में गिर जाता है। हम सब मैदान करबला में अंधे और बहरे हो गए थे जो हम गड्ढे में गिर गए। दरवाजा तौबा इसीलिए तो खुला हुआ है। तौबा का दरवाजा इंसान पर खुला हुआ है, ना कि शैतान पर। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं कि हम अपने मुश्तरका दुश्मन की फिक्र करें? क्यों नहीं? फिलहाल मुख्तार मेरा और तुम लोगों का मुश्तरका दुश्मन है, तो फिर अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लीजिए। मैं सिर्फ मुख्तार से दुश्मनी और उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहाद करने में तुम लोगों के साथ हूं, बस। मेरी दुश्मनी अहले बैत रसूल के कातिलों के खिलाफ ता कयामत बाकी रहेगी। सुन लिया तुमने? तो फिर मुत्तहिद हो जाएं ताकि मुख्तार जैसी एक आफत को जड़ से उखाड़ फेंक सकें, वरना वो हम सब के दीन और दुनिया को बर्बाद कर डालेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कसम खानी पड़ेगी कि मैं मुख्तार की दुश्मनी पर मुसिर और संजीदा हूँ? जनाब रुफाए, आप मुख्तार की जबान के जादू से खूब वाकिफ हैं। मुझे डर है आप उसके जादुई पैगामात पर लड़खड़ा जाएं और बहतान छोड़ जाएं। जादू ज़बान मुख्तार तुम जैसे अनोखी जुबान रखने वालों के लिए खौफनाक है। मैं अगर पीछे हटने का इरादा न रखता तो मैं हरगिज मुख्तार के सामने दू बदू खड़े होकर उसके अकीदों की मुखालफत न करता। मुझे एक शुबा था जिसे मैं जबान पर ला चुका, ताकि खुदा न खास्ता तोहमत और गीबत का गुनहगार न हो जाऊं। हम आज रात कश्र कूफा का मुहासरा कर लेंगे। आप और यमनी हजरात इसी मकाम पर रुक सकते हैं यहां तक कि हमारी खबर आप लोगों तक पहुंचे। खुदा ने चाहा तो अगले 2 से 3 दिनों में मुख्तार की बला उसके साथ ही दफन हो जाएगी। खुदा जानता है कि मेरी दिली तमन्ना है कि मुख्तार का सर तन से जुदा हो जाए, मगर इसके बावजूद उसके खिलाफ बगैर सोचे समझे तलवार उठाने के खिलाफ हूँ। मुख्तार वो आदमी नहीं है जो बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाए। मैं समझता हूं कि उसकी खामोशी में कोई चाल है। कैसी चाल? यही तो मसला है। पता नहीं, शायद आप लोगों की मालूमात की मदद से उसकी चाल को समझ लूं। जनाब रुफा, आप एक तवील अरसे तक मुख्तार की तन्हाई के साथ ही रहे हैं। यकीनन आप उसकी तदबीरों के रमज़ राज से वाकिफ होंगे। मुख्तार अपने तमाम आला अफसरान के अहले खाना को महल बुलवा चुका है ताकि मुखालफिन के मुमकिन शर से महफूज रह सके। इसका मतलब वो ये जानता था कि उसकी हुकूमत को कोई बड़ा खतरा दरपेश है। तो फिर क्यों उसने अपनी तमाम तर मौसर तरीन फौजों को मूसल की जानिब रवाना कर दिया? शेख साहब, इब्राहिम मुख्तार की सिर्फ एक ताही ताकत है जो मूसल गया है। मुख्तार के दाएं बाएं बाजू मुख्तार के साथ हैं। ज्ञान अजम बिन कामिल अरब।
शेम्र, मैंने अपने शक का जवाब जनाब रुफाहा से मांगा है, तुमसे नहीं। मुख्तार तुम जैसों को शुबहत पर उम्मीद लगाए बैठा है शेख। वो यकीनन ये जानता होगा कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे अफराद हैं जो हद से ज्यादा मोहतात और डरपोक हैं। जब तक ये ना जान लूं कि मेरा मद्दे मुकाबिल क्या इरादा रखता है, तलवार नहीं निकालूंगा। आप लोगों के अज़्म की राह में हायल भी नहीं होगा। लश्कर की पुश्त पर खड़ा रहूंगा और जहां तक हो सके आपकी हिमायत करूंगा। काश हमारे बराबर में खड़े होते शेख। मुख्तार तुम्हें मैदान में देखता तो जल्दी कमर खम कर लेता। नहीं शिम्र, तरजीह दूंगा कि मैं फिलहाल अपनी मस्जिद का पेश इमाम रखूं, ना कि मैदान में रहूं। आपने सुना जनाब रुफा, तुम भी यमनियों के पेश इमाम रह सकते हो बजाय इसके कि मैदान में रहो। जो भी जहाद के माले गनीमत को पाना चाहता है वो दोबारा बैत कर ले। जनाब रुफाहा, जनाब रुफाहा, जनाब रुफाहा, जनाब रुफाहा, हम जाल में फंस गए हैं। क्या मतलब? हम धोखे में आ गए थे। मालिक अश्तर का बेटा वापस कूफा पहुंच गया है। फसलों की कटाई करता आगे बढ़ता जा रहा है। अनकरीब वो हम तक पहुंचने वाला है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये चर्चा हो गया है कि वो फरिश्तों के पैरों पर बैठकर कूफा पहुंच गया है। हैरत है। मुझे पता था कि ये झूठा सखफी जादूगर है। मुझे शक नहीं कि उसका खून बहाना बहुत अजर व सवाब रखता है। इस नारे का कोई मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। नारा है, हमें खून उस्मान से क्या लेना देना। रुफा, तुम्हें अब तक हमारे साथी की हकानियत पर शक है? आंखें खोलो और देखो, खूने हुसैन का इंतकाम चाहने वाला कातिलाने हुसैन के साथ खड़ा हुआ है। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास अपनी खता का इजाला करने का वक्त बाकी है। मैं रुफाए इब्न शद्दाद शियाए अली हूं और उसके बेटे हुसैन का इंतकाम लेने वालों में से हूं। ओ शद्दाद के बेटे, मालिक अश्तर के बेटे की तलवार की चमक ने तुम्हें डरा दिया क्या? तुम हमें छोड़ना चाहते हो? बखुदा कसम, मैं आज तक किसी तलवार की चमक से नहीं डरा और ना कभी तलवार के कब्जे पर मेरी गिरफ्त कमजोर पड़ी है।
ये जंग एक बातिल जंग है। हम रास्ते से भटक गए थे और मुख्तार पर बदगुमान हो गए थे। अब जबकि रास्ता वाज़ेह है, ये रवा नहीं कि हम गुमराही की मौत मारे जाएं। हम तुम्हारे मातहत थे, तुम्हारे हुक्म पर चल रहे थे। हमें गुमराह करने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी।